اب تک جو سوال ہے وہ کیا گردش کر رہی ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے یا تاخیر سے؟ دیکھیں سوال گردش کر رہا ہے بالکل، اور یہ جو سوال ہے یہ ہے کہ اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، یا فردر اس میں ڈیلے ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے یہ الیکشن کمیشن طے کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی دو باتیں، مطلب ایک تو یہ ہے کہ جی نومبر، ایک یہ ہے کہ شاید فروری مارچ، اور ایک یہ ہے کہ اس سے بھی تاخیر۔ یہ وہ ہے جو ہم ظاہر ہے کہ ٹی وی پہ اور موبائلوں میں تقاریر سن رہے ہیں ساری۔ ایک سسٹم چلا گیا ہے، جی ایک حکومت نہیں گئی، ایک نظام چلا گیا ہے۔ نظام، جمہوریت موجود ہے، 73 کا آئین اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایک سسٹم کا جو لفظ ہے میں وہ استعمال کر رہا ہوں، ایک سسٹم چلا گیا ہے۔ اور اگلا سسٹم، اس میں کون سی جماعتیں کس رنگ روپ میں ہوں گی، کون سی نہیں ہوں گی، اس کا خاکہ کیا ہوگا، اور تیزی کے ساتھ اگر یہ انتخابات فروری میں بھی ہوتے ہیں تو اس وقت تک آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں بہت بڑی تبدیلیاں پاکستان کے سیاسی افق پہ نظر آئیں گی۔ اور یعنی اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آج سے 3 یا 4 مہینے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، جی لیکن ہو گیا۔ اسی طرح سے اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں غالباً ایسا بہت کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا اس وقت تصور نہیں ہو سکتا، لیکن تیزی سے ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں جو پاکستان نے آگے کس طرف جانا ہے، یہ خطے اور جو پورا ریجن گلوبلی جو معاملات ہیں اس میں یہ فیصلے پاکستان تھوڑا سا، مطلب اگر آپ پیچھے رہے ہیں 3-4 آپ کو جو ہے نا وہ چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں آگے جانے کے لیے، تو ہم بہت پیچھے تو نہیں، لیکن ہم اس کو تیزی کے ساتھ ہم اپنی جگہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو اندر جو ہے وہ ملک کے اندر بدامنی یا انتشار یا خلفشار یا ایسے سارے معاملات، اس کے اوپر آنے والے دنوں میں قابو آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری بات، 18 تاریخ کو اچھا ساری حکومتیں چلی گئی ہیں، اگلی حکومتیں کس شکل میں آئیں گی کوئی نہیں جانتا، کون سی جماعتیں ہوں گی کوئی نہیں جانتا، کس کا کس سے اتحاد ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ 18 تاریخ کو 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا نیب ترامیم کیس، جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا ترامیم کو، جس میں نیب کی میں جو یہ پارلیمنٹ جس کے بارے میں تاریخی جملہ شاہد خان عباسی صاحب بھی کہہ گئے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے آنے کے بعد جو سب سے پہلا ایک کام ان کے ہاتھ سے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے نیب کے کیسز معاف کرواؤ۔ تو وہ نیب ترامیم چیلنج ہو گیا تھا معاملہ، اور وہ اس کی تقریباً میرا خیال ہے 45 یا 46 یا 47 اتنی سماعتیں اس کی ہوئیں، لیکن اب اس کی سماعت لگ گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا تو یہاں سے پارلیمنٹ میں سے ظاہر ہے بہت ہنگامہ، اب پارلیمنٹ نہیں ہے تو وہاں پہ، اور 3 رکنی بینچ ہی سنے گا، 3 رکنی بینچ، اور اس کی 18 تاریخ کو سماعت ہوگی کہ کیا نیب کے اندر مطلب اتنے کروڑ کی کرپشن جو ہے وہ نیب میں جائے گی تو اتنے کروڑ کی ادھر سے ادھر جائے گی، تو کیا اس میں کیا الٹ پلٹ کر کے الٹی سیدھی ترامیم ہو گئی تھی۔ اور وہ اگر ترامیم اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کئی مقدمات دوبارہ کھل سکتے ہیں جو کہ کسی خاص لیول پہ بند ہو گئے تھے۔ یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کو مناسب فورم پہ بھیجیں، یہ نیب مطلب نیب کا نہیں ہے، کسی اور عدالت میں بھیج دیں، ادھر دے دیں، تو پتہ چلا یہ ترامیم اگر اڑ جاتی ہیں یا رہتی ہیں، مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آتا ہے، تو وہ سارا کا سارا پھر واپس۔ تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اچھا ابھی یہ جو نیا نگراں سیٹ اپ ہے یہ ابھی اپنی شکل لے گا، یہ شکل ابھی اس کا رنگ روپ جو ہے صوبائی سطح جو لیول پر بھی اور قومی سطح پر بھی یہ ابھی اپنی یعنی آپ سمجھیں کہ یہ شکل مختلف کہ یہ کس طرح سے کیبنٹ ہوگی، خزانہ کیسے دیکھے گا جائے گا۔ آج رات کو
इतलात हैं 15 तारीख को 15 दिन के बाद पेट्रोलियम की कीमतें वगैरह बढ़ती हैं, तो आज देखते हैं रात को बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्या ऐलान होता है। लेकिन पेट्रोल पंप्स वगैरह पे इस वक्त काफ़ी रश लगा हुआ है और डॉलर जो है वो 300 रुपया क्रॉस कर गया है। तो फौरी तौर पे यकीनन अब जो निगरां वज़ीर आज़म है उनके ऊपर भी दबाव है कि जल्दी वो कैबिनेट अनाउंस करें, कम से कम कोई वज़ीर ख़जाना ऐसा है जल्दी जो कि ये काबू पाए ये मईशत, क्योंकि मईशत को आप छोड़ नहीं सकते आपने वहीं पर, क्योंकि वो क्लॉक टिक टिक कर रही है और तेज़ी के साथ। तो IMF का हर रोज़ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आपने वो अहदाफ उनका उनके तरफ से डेलीगेशन ने आना है, फिर आपने आगे मईशत को, तो ये सारे मामला जो हैं वो आपस में तेज़ी के साथ कहीं इसमें दोबारा गड़बड़ ना हो जाए। और साथ साथ ये है कि आवाम के ऊपर मजीद बोझ भी ना पड़े, सख्त फैसले हों मगर वो सख्त फैसले आवाम के लिए ना हों। और तो ये अब इस वक्त देखते हैं कि ये जब काबीना सामने आती है और मामला आगे चलते हैं तो किस तरह से। लेकिन मैंने आपसे ये कहा ना कि इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने बात की ना कि कौन सी सियासी जमातें होंगी या कौन सी नहीं होंगी, या कौन सी क़यादतें होंगी मैदान में या नहीं होंगी। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाहिर है कि उस वक्त वापस आएंगे जब ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद बात की उन्होंने कि जब बिल्कुल मामलात उनके बिल्कुल यानी वो लंदन में ही उनको एक फैसला सुना दिया जाएगा कि आप वापस आए, उससे पहले वो वापस नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल से ये बात खुद भी समझते हैं वो नवाज शरीफ साहब ये बात जानते हैं। उनको मतलब ये नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब कहेंगे तो उनको, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, उसके बाद आज बात आई कि जी वो उनकी फैमिली ज़रा ने कहा कि 15 सितंबर आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब बिल्कुल यानी अब आप देखें ना कि दो बड़ी जमातों की जो क़यादत है वो इस वक्त सियासी निज़ाम से माइनस है। और अगर आप पिछले 5 सालों को देखें तो 3 जमातों की क़यादत, एक आप उसमें बानी MKM को भी शामिल करें तो 3 बड़ी जमातों की जो क़यादत है वो माइनस हुई है। अच्छा अब अब मैंने आपसे कहा कि क्या शक्ल इख्तियार करता है पॉलिटिकल आपका जो लैंडस्केप है कमिंग डेज में। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पैट्रियट्स और ये मुस्लिम लीग काफ भी है कहीं, ये भी सारा। और आप ये देखें कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस से मुख्तलिफ हवालों से गालिबन इस वक्त जो मुल्क में माहौल है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। एक तो हमें सामने नज़र आई ज़ीरो टॉलरेंस वो टेररिज्म के ऊपर नज़र आई, और आर्मी चीफ का जो अब तक का जो एक वाज़ेह उनकी चीज़ सामने नज़र आई। बाकी तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो सेटअप उसमें, लेकिन जो वाज़ेह चीज़ नज़र आई है वो ये है कि टेररिज्म के ऊपर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है और ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये कैनी साहब के दौर में या उससे पहले मुझे बड़ा एक इशू खड़ा हो गया था ये 9/11 के बाद। तो और उसमें ये था कि बातचीत की जाए, फिर एक बातचीत हो रही है फिर वो नाकाम हो रही है। सारे हमने मुज़ाकरात देखे हुए हैं 2005 से 4 से जब से पहला दौर हुआ था तो उसको भी विटनेस किया हुआ है। और उसके बाद कभी वो बात बनती थी फिर ख़त्म होती थी, कभी फिर उसमें जराइम पेशा गिरोह शामिल हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, दहशत गर्दी पूरे मुल्क में। और मुझे वो एक दफ़ा बात हो रही थी तो किसी जगह पे तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने कि जी वो हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा अब जो है वो समझ लिया कि दहशत गर्दों को कैसे पकड़ना है और कैसे ख़त्म करना है। और जदीद तरीन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आ गई। और तो मैंने कहा जी वो आपने उनकी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने भी आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह आप इधर ट्रेन होते हैं वो भी ट्रेन होते जाते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी आती है उधर वो भी एडवांस होते हैं। इसीलिए आपको ये जो वाक़यात नज़र आते हैं ना, धमाका हो गया कहीं, ये बहुत सारे वाक़यात नहीं होते, उससे पहले रोक लिया जाता है, ठीक है। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के बस में नहीं होती और वो हो जाती हैं 12। तो ज़ीरो टॉलरेंस टेररिज्म पे, इसी तरह से ज़ीरो टॉलरेंस और काफ़ी मामला पे नज़र आएगी।
मतलब मिसाल के तौर पे परवेज इलाही साहब का जो मामला है, अब आप देखें परवेज इलाही साहब जो हैं उनको दोबारा 14 दिन का जिस्मानी रिमांड उनको, और वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में, दूसरा तो तीसरा तो फिर कई दफ़ा वो निकल, उनकी जमानत हुई है, वो दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। और जो इसमें जो 6 केसों में आज जमानत साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई की जो है वो आज 9 मई के हवाले से, मैं अभी अपनी उस बात पे, मेरा बड़ी दोस्त अहबाब से बात होती है हमारे, जाहिर है कि बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, लेकिन वो कहते हैं हमेशा कि तोशा खाना, मुझे ये लगता है हमेशा कि 9 मई ज़्यादा संगीन, 9 मई पे जी, 9 मई ज़्यादा संगीन। और क्योंकि तोशा खाना जो है वो तो है, लेकिन वो तोशा खाने में तो फिर बहुत से लोग हैं ना, वो फिर वो एक पॉइंट उठता है कि ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ये चूंकि स्पेसिफिक है 9 मई, तो इसलिए ये ज़्यादा संगीन केस है। और 9 मई के हवाले से 6 मुकदमात में आज उनकी जमानत खारिज हुई है, यानी अगर एक में बेल हो जाएगी, दूसरे में रहे, दूसरे में, तीसरे में। और साथ ही जो हसन नियाज़ी साहब हैं उनको गालिबन बलूचिस्तान की पुलिस ले गई है, तो वो अपने पास रखेगी, फिर वो पंजाब की पुलिस ने मांग ली है, वो एक मरकजी मुलजिम के तौर पर उसमें नामजद है। इसमें और गिरफ्तारियां भी होंगी। अब पिक्चर क्या बनेगी पॉलिटिकल? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक हदायतनामा जारी किया और उसमें ये कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब वो कैसे होगी, किस तरह से दी जाएगी, कैसे, उन्होंने और भी बहुत सारी मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतों, कोई सियासी जमातें उसके उनके फंड्स इस्तेमाल ना करें, रिसोर्स इस्तेमाल ना करें, पूरा उनका एक हदायतनामा है और मुनासिब है इलेक्शन कमीशन के हवाले से बिल्कुल। लेकिन उसमें अब लेवल प्लेइंग फील्ड का एक इशू है कि उधर से पाबंदी भी है, उधर से, तो ये आने वाले दिनों के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि ये नया सिस्टम जो है ना, नया सिस्टम जो इलेक्शन तक जाएगा, इसको कोई तरतीब नहीं दे रहा होगा, ये खुद ब खुद बात से बात निकलती ये आगे इलेक्शन तक जाएगी। एक कानूनी दलील आएगी, कोई दूसरा, कोई मतलब वो बातें आगे से आगे खुद ब खुद और तेज होगा, तेजी से होगा। इलेक्शन इंश्योर कराना अब इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जैसे कि अभी तक